Good morning, 11th standard. And today we are going to start with another one topic, and that is ionic bond, or we can say electrovalent bond. So, beta, as all of you know, that ionic bond is the bond which is formed by the transfer of electrons, and basically it depends upon the ease of formation of the positive and negative ions from the respective neutral atoms. ठीक है, तो why there is the formation of positive and negative ions? So it's very simple that every element or every atom want to complete its octet, and with the we can say the Coastal and Lewis treatment or approach tell us. So for that, the elements, or we can say the atoms, converted into the positive and negative ions. The arrangement of positive and negative ions in solid basically is the lattice of crystalline compound. ठीक है, तो क्रिस्टलाइन कंपाउंड की लैटिस में आपके पॉजिटिव और नेगेटिव जो होते हैं आयंस जो होते हैं वो क्या करते हैं, they just adjust themselves, as you can see it in here the picture. This is the structure of rock salt. किसका है स्ट्रक्चर बताएंगे बच्चे? रॉक सॉल्ट का स्ट्रक्चर है ये, और रॉक सॉल्ट को हम NaCl भी कहते हैं बेटा, एंड दैट्स व्हाई इफ यू कैन सी हियर, तो जो ये पिंक कलर की बॉल्स हैं ये आपकी सोडियम पॉजिटिव आयन दिख रही हैं, ठीक है, विच इज अरेंज्ड एंड द कॉर्नर्स ऑफ एवरी यूनिट सेल, हर यूनिट सेल के कॉर्नर्स में लगे हुए हैं। और सिमिलरली अगर आप देखोगे तो कहीं पे आपका ये देखो, यहाँ पे सोडियम है Na positive, then here Na positive is arranged, and whereas in the same one pattern we can say that the chloride also, the chloride ions are also that which is shown by the blue color blue color balls, that is also arranged at the corners of this structure. और ये जो structure है ये पूरा का पूरा crystal lattice है, और इसकी हर एक सबसे छोटी सेल जो कि अपने को repeat कर रही है, that is known as the unit cell. So from here we can say कि positive ion जो होता है वो ionization से इन्वॉल्व होता है या आयोनाइजेशन को इन्वॉल्व करता है। एंड व्हाट इज आयोनाइजेशन? इट इज जस्ट द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम न्यूट्रल एटम, और हम इसे इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं दैट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू टू take out or to remove the outermost electron, to remove the outermost electron from an outermost shell of an isolated gaseous atom. ये एक gaseous atom है, उसके outermost shell में से जब एक electron remove होगा and the atom is converted into the univalent or unipositive ion, then that is known as the first ionization enthalpy. Whereas if we are talking about the negative ion formation, that in it involves the addition of electron to the neutral atom, जिसे कि हम electron gain enthalpy के through भी पढ़ते हैं, and this is the energy when a gas phase atom in its ground state, यहाँ से देखिए बेटा, gains an electron, तो जब एक इलेक्ट्रॉन उसके पास आता है, कहाँ से आ रहा है? ये आयोन M पॉजिटिव से X के अंदर आपका क्या आया? इलेक्ट्रॉन आया, and X is converted into X negative, and when at last M positive and X negative that form an ionic compound, that is known as the what? That is known as the ionic or electrovalent compound. ठीक है बच्चे? So here we can say that this is it requires the basically the two energies, and that is what? That is the electron gain enthalpy and the ionization enthalpy. ठीक है? Then after that, if we are we can say the ionization usually is always endothermic, whereas the electron gain enthalpy may be exothermic or endothermic. ठीक है, याद रहेगा
कि ये एंडो भी हो सकती है, ये एक्सो भी हो सकती है, क्योंकि दोनों तरीके की एनर्जी कैन बी रिलीज और एनर्जी कैन बी एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. बट whenever there is a removal of electron will take place beta, so there is always the what, there will be always the energy is absorbed, तभी तो ब्रेकअप होगा और तभी एक इलेक्ट्रॉन आपका बाहर निकलेगा. ठीक है. जबकि अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, दिस इज अनदर वन टर्म यूज्ड, इट इज द नेगेटिव ऑफ द एनर्जी चेंज accompanying electron gain. तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का अगर नेगेटिव ऑफ एनर्जी चेंज है तो उसे हम क्या कहते हैं, और उसे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहते हैं. इज इट क्लियर बेटा? सो हमने अभी इसकी बात करी. देन वी मूव अप टू द हियर, जस्ट 1 minute बच्चे. ठीक है बेटा. सो यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो आयनिक बॉन्ड्स जो हैं दैट इज इजीली फॉर्म्ड इन बिटवीन द एलिमेंट्स व्हिच इज हैविंग अ लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी and the elements which is having a high negative value of electron gain enthalpy. तो किस किस के बीच में आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो सकता है? लो आयोनाइजेशन एंथैल्पीज के एलिमेंट्स कौन से होंगे? ऑब्वियसली एस ब्लॉक, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, और लास्ट 17th ग्रुप जो हेलोजन है उसकी हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है. सो वी कैन फॉर्म द आयनिक बॉन्ड इन बिटवीन दीज कंपाउंड, फॉर एग्जांपल NaCl, MgCl2, MgBr2, Ki. तो मतलब हेलोजन्स और फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स के बीच में. एंड दैट्स व्हाई वी कैन से ionic compounds have cations which is derived from the metallic element, and they have anions which is derived from the non-metallic element. जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं अमोनियम आयन जो कि दो नॉन मेटालिक एलिमेंट्स का बना हुआ है, it is an exceptional case, and it forms the cation of a number of ionic compounds like नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों ही नॉन मेटालिक है, बट उनके साथ अगर क्लोराइड लगा दूं तो अमोनियम क्लोराइड इज एन आयनिक, अमोनियम ब्रोमाइड, ammonium hydroxide. So these are the ionic compounds, and so that's why we can say it is an exceptional case here. ठीक है, which is formed by the two non-metallic, and even after though they are forming what they are forming the ionic compounds. ठीक है. So ionic compound की अगर हम बात करते हैं, so it is a basically in the crystalline state it consists of 3-dimensional अरेंजमेंट. जैसा कि बेटा यहाँ फिगर में दिख रहा है, तो इस तरीके की अरेंजमेंट होती है जिसमें कि कैटायंस और एनायंस जो होते हैं दे आर हेल्ड टुगेदर बाय द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्बिक फोर्स. ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्बिक इंटरैक्शन बोल दो, कूलम्बिक फोर्स से कह लो. और ये कंपाउंड जो होते हैं दे क्रिस्टलाइज in different crystal structures which is determined by the size of the ions, their packing arrangements and other factors. So the crystal structure की अगर NaCl की ही बात करी जाए तो this is the NaCl structure, and in this one you can see as here that this one, in this structure we can show you that the chloride ions and sodium ions they are arranged at the corners of the lattice. वो कहाँ पे बेटा arrange हो रखे हैं? आपके corners पे arrange हो रखे हैं. So in ionic compounds जो sum of electron gain enthalpy और ionization enthalpy का जो sum होता है बेटा that may be positive, but still the crystal structures get stabilized due to energy released in the formation of crystal lattice. जब आपका स्ट्रक्चर बन रहा है तो उसमें एनर्जी क्या होगी? आपकी रिलीज होगी. जैसे कि अब देखिए इस एग्जाम्पल में आयोनाइजेशन एंथैल्पी सोडियम फॉर्मेशन की, सोडियम से Na से Na पॉजिटिव बनने पे 495.8 है. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से क्लोराइड बनने की -348 है. और अगर मैं दोनों एनर्जीज का सम कर दूं तो इट इज 147.1 किलो जूल, विच इज मोर देन कंपनसेटेड by the enthalpy of lattice formation of NaCl. जब NaCl की lattice enthalpy की बात करें, मतलब कि ये structure जब बन रहा है उसकी बात करें तो that is near about -788 किलो जूल. और
ये कितनी है 147.1 किलो जूल पर मोल। तो ये अलग अलग एनर्जीज हो रही हैं हमारी। Therefore we can say that जो एनर्जी रिलीज होती है, क्या एनर्जी रिलीज होती है इन दिस प्रोसेस, दैट इज मोर देन द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, तो वो एनर्जी हमेशा किससे ज्यादा रहेगी, जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है उससे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी लैटिस एंथैल्पी वाले प्रोसेस में। ठीक है, एंड वी कैन से इसका मतलब कि स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड is provided by its enthalpy of lattice formation, not simply by achieving octet of electron। सिर्फ एक octet of electrons ही पूरा होना जरूरी नहीं है, उसके साथ साथ कितनी एंथैल्पी आपकी रिलीज हो रही है लैटिस फॉर्मेशन के दौरान। माने एक कंपाउंड को सॉलिड स्टेट में अपने 3 डायमेंशनल ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर में आने में, that also plays a very important role in the formation of ionic compound। क्लियर हुआ बेटा ये सारी चीजें। नाउ वी मूव अप, क्योंकि हम अब बात कर चुके हैं कि हमारी लैटिस एंथैल्पी जो है दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो लैटिस एंथैल्पी, पहले हम ये पढ़ेंगे कि लैटिस एंथैल्पी होती क्या है बच्चे। सो लैटिस एंथैल्पी is the energy which is required to complete separate 1 mole of solid ionic compound into gaseous constituent ions। ठीक है, उतनी एनर्जी जो कि हमारी 1 मोल ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड को तोड़ने के लिए चाहिए होती है या कन्वर्ट करने के लिए चाहिए होती है उसको गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट में। जैसे कि अगर एग्जांपल में बोले तो NaCl की लैटिस एंथैल्पी कितनी है 788 किलो जूल पर मोल। व्हाट डज इट मीन, दैट दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट 1 मोल ऑफ सॉलिड NaCl इनटू, बेटा 1 मोल NaCl गैसियस स्टेट से 1 मोल 1 मोल सॉलिड NaCl जो आपका है उसको 1 मोल ऑफ Na पॉजिटिव गैसियस और 1 मोल ऑफ क्लोराइड नेगेटिव गैसियस में कन्वर्ट करने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट है that is equals to 788 kilojoule per mole, and it is known as the lattice enthalpy of NaCl crystal, which involves both type of forces। 2 तरीके के अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं। कौन कौन से इन्वॉल्व करती है, आयंस ऑफ अपोजिट चार्जेस Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, 2 अपोजिट चार्जेस का, एंड रिपल्सिव फोर्सेस इन बिटवीन ऑफ लाइक चार्जेस। उसके अंदर बहुत सारे Na पॉजिटिव होंगे तो 2 पॉजिटिव सिमिलर पॉजिटिव चार्जेस का रिपल्सिव फोर्स और सिमिलर नेगेटिव चार्जेस का रिपल्सिव फोर्स। तो एक ये रिपल्सिव फोर्स और दूसरा कौन सा फोर्स जो कि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। सो that is this type of a force of interaction constituent the atoms of Na positive and chloride negative together in a solid crystal। और इनको forces को तोड़ने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसे हम उसकी लैटिस एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है बेटा, so this much is clear to all of you, fine। so आज हमने क्या क्या अभी तक पढ़ा है, हमने बात करी है आपकी लैटिस एंथैल्पी की और साथ में आपके आयनिक बॉन्ड की। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट वन टॉपिक एंड दैट इज द बॉन्ड पैरामीटर्स। तो हम थोड़ा सा उसके बारे में भी फटाफट डिस्कस कर ले। दीज आर द इजी वन एंड यू हैव स्टडीड आल्सो previously also in this these parameters। the first one parameter which we are talking about, that is the bond length। तो बॉन्ड लेंथ जैसा कि हम एटॉमिक रेडियाई वगैरह पढ़ चुके हैं तो हम इनकी भी बात करेंगे। सो दिस बॉन्ड लेंथ इज नथिंग बट इट इज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। ठीक है, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस इन बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ 2 बॉन्डेड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। जैसे ये देखो, आई जस्ट शो इट टू यू, बॉन्ड लेंथ है। अब बॉन्ड की लेंथ है तो किसी भी मॉलिक्यूल के 2 बॉन्डेड एटम के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, कहाँ से डिस्टेंस मेजर होता है, जैसे हम बॉन्ड लेंथ एटॉमिक रेडियाई, वैन डर वाल्स रेडियाई,
हमारा कोवलेंट रेडियाई लेते थे। सिमिलरली बॉन्ड लेंथ उन्हीं रेडियास से रेलेवेंट है, और वो क्या है, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स। ठीक है, उन दो बॉन्डेड एटम्स के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, बॉन्ड लेंथ कहेंगे, विच कैन बी मेजर्ड बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक, एक्सरे डिफ्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक्स, और जो कि हम आगे पढ़ेंगे, हायर इस क्लासेस में पढ़ेंगे। बट अभी के लिए हम डिफरेंट रेडियस, बेटा ये आप प्रीवियस चैप्टर नंबर 2 में, चैप्टर नंबर 3 में भी कर चुके हैं। बट अगेन आई एम रिपीटिंग, कोवलेंट रेडियस जैसे कि इट इज द रेडियस ऑफ एन एटम कोर which is in contact with the core of adjacent atom in a bonded situation। यहीं से समझ लेते हैं। ये देखिए आपके दो कोवलेंट और वेंडर वॉल रेडियाई क्या होंगे बच्चे, दिस इज, अगर मैं इस न्यूक्लियस से सीधा इस न्यूक्लियस तक के बात करती हूँ, तो ये मेरा जो डिस्टेंस बनेगा, मेरी स्ट्रेट लाइन नहीं गई, यहाँ पे देखिए, दिस डिस्टेंस इज नोन एज द कोवलेंट रेडियाई, वेयर एज द डिस्टेंस फ्रॉम दिस मॉलिक्यूल डिस्टेंस टू दिस वन, ये वाला इनके सेंटर से लेके इस वाले से लेके और इस वाले तक का, इसे हम वैंडरवॉल रेडियाई कहेंगे। ठीक है बेटा, तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। ये जस्ट 1 मिनट, मैं पहले ये इरेज कर दूं सारा आप लोगों के लिए, अदरवाइज इट विल क्रिएट कंफ्यूजन हियर। ठीक है, सो बॉन्ड लेंथ की बात अगर करी जा रही है, तो हम यहाँ पे सिंपली सीधा देख सकते हैं दैट दिस इज द R is nothing, bond length is nothing, but it is the sum of radii of two nuclei, ये nuclei to outermost shell of an atom, और दूसरे का भी sum of, so this is nothing but it is the sum of the covalent radii of atoms of A and B। ठीक है, so this one is known as the what, this is known as the your bond length। okay, नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा, हम अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट वन टर्म विच वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज द बॉन्ड एंगल। ठीक है, नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द बॉन्ड एंगल, तो ऑब्वियसली दिस इज द एंगल इन बिटवीन द ऑर्बिटल्स containing bonding electron pair around the central atom in a molecule। एक सेंट्रल एटम के मॉलिक्यूल से जो बाकी के आपके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, वो उनके बीच का एंगल कितना है, उसे हम क्या कहेंगे, बॉन्ड एंगल कहेंगे, एंड इट इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन द डिग्रीज एंड विच इज डिटरमाइंड द स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स। ठीक है, मेजर ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से किया जाता है, एंड इट जस्ट गिव अस अ लिटिल बिट आइडिया अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्बिटल्स अराउंड द सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल, एंड हिंस अगर हम यहाँ से बात करें तो ये हमें शेप बताता है किसी भी मॉलिक्यूल की कैसे होगी। जैसे कि अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ आपका क्या है, बेंट शेप में क्या हो रखा है, कनेक्टेड, तो जो 104.5 का डिग्री का एंगल है, उससे अगर मैं शेप बनाती हूँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की, सो इट जस्ट गिव मी अ आइडिया कि जो HOH मींस H और O के बीच में जो एंगल है, उससे पता चलता है कि वाटर मॉलिक्यूल की जो शेप होगी वो कैसी होगी, बेंट होगी। ठीक है, सो दिस इज द bond angle। Now another one is the bond enthalpy। So it is the amount of energy which is required to break 1 mole of bond in a particular type between two atoms in gaseous state। But there is a difference in between the lattice enthalpy and bond enthalpy। Bond enthalpy is the amount of energy which is required to break 1 mole of bond। ठीक है, 1 मोल ऑफ बॉन्ड को तोड़ने के लिए, दो एटम्स के बीच का जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए, 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी की गैसियस स्टेट में रिक्वायरमेंट होती है, उसे हम क्या कहते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं। इट्स एसआई यूनिट इज किलोजूल पर मोल, एंड in bond enthalpy in a hydrogen molecule it is 435.8 kilojoule per mole। ठीक है, तो H2 जो है gaseous, that gives us H plus S। तो ऐसे ही अगर हम O2 को तोड़ें तो इसकी एंथैल्पी
एटमाइजेशन एंथैल्पी 498 है। नाइट्रोजन को तोड़ें तो इसकी एटमाइजेशन एंथैल्पी 946 है, ठीक है। सो किलो जूल पर मोल है। So these are the different energies we can say which is required to break 1 mole of bond. So here we can again say that larger the bond, or larger the dissociation enthalpy, stronger will be the bond in the molecule. भाई सिंपल सी चीज है, जितनी ज्यादा उसकी dissociation enthalpy means उसको उतनी ज्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है। अगर जितनी ज्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है तो इसका मतलब कि वो बॉन्ड उतना स्ट्रांग था। ऑब्वियसली अगर सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक दो फ्रेंड्स हैं और उन दो फ्रेंड्स के बीच का एक बॉन्ड जो है, जो उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो आपको उस स्ट्रेंथ को, उस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को, उस फ्रेंडशिप को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी, है ना। और दो फ्रेंड्स हैं जो कि ऐसे ही आपस में चलते फिरते फ्रेंड्स बने हैं, तो अगर एक दूसरा फ्रेंड जो है वो उसको इजीली समझाता है कि नहीं नहीं ये सामने वाला गंदा है, तो इजीली क्या होगा, पहले वाला उस चीज को रिकॉग्नाइज कर लेगा और उनकी जो फ्रेंडशिप होगी वो क्या होगी, टूट जाएगी। सो दैट मीन्स यू हैव टू work out very less in the second one case. But अगर कोई फ्रेंड्स बचपन से हैं तो उनकी फ्रेंडशिप या वो आपस में बहुत अच्छा समझते हैं तो उनकी फ्रेंडशिप स्ट्रांग है, एंड यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड, मींस यू हैव टू प्रोवाइड more and more energy to break that bond. So that means larger the bond dissociation enthalpy, stronger will be the bond in the molecule. याद रहेगा, ये एक लाइन याद रखिएगा, जितनी ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी उतना ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा। तो यहाँ पर हमारे को मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी भी पता चलती जाएगी बेटा, ठीक। हेटेरो, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे आपका हेटेरो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल ले रहे हैं हम, HCl। डायटोमिक क्यों कहा, बिकॉज हाइड्रोजन इज वन एटम एंड क्लोरीन इज द अनदर वन एटम। तो इनकी एटमाइजेशन एंथैल्पी कितनी है, 431 किलो जूल पर मोल है, ठीक है। एंड अगर हम बात करें कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की, किसकी बात कर रहे हैं, पॉलीएटॉमिक मींस बहुत सारे एटम्स है जिसके अंदर, देन बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगी वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। ऑब्वियसली अभी भाई एक आपने एक बॉन्ड तोड़ना है हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में, एक बॉन्ड तोड़ना है हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में, हाइड्रोजन गैस के अंदर, ऑक्सीजन में OO के बीच में तोड़ना है। सो दैट विल बी मोर इजियर whether the comparatively to the case of ammonia, or in case of water also, the enthalpy which is needed to break two hydroxyl bonds, that will not be the same. दोनों हाइड्रोक्सिल, क्योंकि दो OH bonds है वहां पे, इन दोनों को तोड़ने के लिए भी हमें अलग अलग एनर्जी देनी पड़ेगी, माने दोनों की सेम एनर्जी नहीं होगी। इज इट क्लियर बेटा, कैसी होगी, दोनों के केस में डिफरेंट होगी। लेट्स सी क्यों डिफरेंट होती है, अभी मैं बताती हूँ आप लोगों को। देखिए जैसे वाटर में जब पहला बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जब पहला बॉन्ड टूटेगा तो प्रोडक्ट बनेंगे H+OH। तो एटमाइजेशन एंथैल्पी इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए चाहिए थी 502 किलो जूल पर मोल, बट जब दूसरा बॉन्ड टूटा तो वो OH के लिए टूटा, तो OH में टूटते हुए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्रोडक्ट आए, एंड द सेकेंड एटमाइजेशन एंथैल्पी इज 427 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो यहाँ पर से अगर हम बात करते हैं तो डिफरेंस आपकी एटमाइजेशन एंथैल्पीज दोनों टाइम पे अलग अलग आ रहा है, विच शोज कि सेकेंड OH बॉन्ड जो था दैट अंडरगोज सम चेंज, एंड बिकॉज ऑफ डिफरेंट केमिकल एनवायरमेंट, ठीक है। इसके लिए जो केमिकल एनवायरमेंट है वो अलग है, और जो पहली इक्वेशन के लिए केमिकल एनवायरमेंट था वो क्या था, अलग था। So that's why because of this difference in energy of same OH bond in different molecules like C2H5OH में या water के अंदर ये अलग अलग होता है, and that's why in polyatomic molecules we calculate mean or एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है। हम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन नहीं कैलकुलेट करते, हम हर स्टेप का क्या करेंगे, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन लेंगे
और फिर उसका एवरेज कैलकुलेट करेंगे. सो इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग टोटल बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बाय नंबर ऑफ बॉन्ड्स ब्रोकन एज एक्सप्लेन बिलो इन केस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. ठीक है बेटा, ये यहाँ पर समझ आया आप लोगों को. जैसे कि वाटर के केस में हमने क्या किया था, हमारी पहली स्टेप की एटमाइजेशन एंथैल्पी थी 502. दूसरे स्टेप में हमारी हमारी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन आई 427. दोनों को डिवाइड किया 2 से, तो आंसर आया 464.5 किलो जूल पर मोल. ठीक है बच्चे, तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे. हमने क्या क्या पढ़ा? आयनिक बॉन्ड, देन आफ्टर दैट बॉन्ड पैरामीटर्स, देन बॉन्ड पैरामीटर्स के अंदर हमने बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी पढ़ी. ओके, सो थैंक यू टू ऑल ऑफ